All right, let us start. Once again, a very warm welcome to all of you to the CodeFront 2.0 Hackathon orientation session. Today's orientation is all about helping you understand what hackathons really are, how to get started, and how you can participate confidently in the CodeFront 2.0. Today, we will be covering how and where to register, what's the evaluation criteria and the judging process, how to understand the problem statements, the right approach to solve them, and much more. Now, it's time to introduce our speaker for today. We are happy to have Nimisha Bhatnagar, co-lead of GDGOC with us. Nimisha has had an inspiring journey within GDGOC. She started as the point of contact in her first year, became an active volunteer in her second year, and today she proudly serves as the co-lead. Isn't it great? She has also been the Business Solution Challenge winner, a Coders Cafe mentee, and a Grace Hopper Celebration Scholar 2024. Without any further delay, let's get started. Over to you, Nimisha. Okay, thank you so much, Mansi, for that beautiful intro. सबको मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार दोबारा कंफर्म कर दो. Yes, you're audible. Okay, great. So starting off, see, we are organizing a campaign which is known as the Tech Sprint campaign. इसका नाम है Tech Sprint. So इस campaign में it includes 3 sessions and a hackathon which is known as CodeFront 2.0. तो ये पूरा हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है एंड इसमें ये चीजें हैं. अब लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज कोडफ्रंट 2.0. सी पिछले साल हमारे फॉर्मर कोर टीम ने कोडफ्रंट ऑर्गेनाइज किया था जो कि पूरा उनका आइडिया था जिसमें हैकेथॉन था सिर्फ. एंड नाउ वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड in this campaign including those 3 sessions also. So also मैं भी बता दूं एक बार कि जिनके लिए नया है कि हैकेथॉन क्या होता है एक्चुअली. हैकेथॉन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन बताते हैं. सो दे सबमिट अ पीपीटी एंड अ वीडियो और जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो सबमिट करते हैं और फिर जिसका आइडिया अच्छा होता है उसका चूज होता है आइडिया और वो विनर बनता है. सो दिस इज बेसिकली हैकेथॉन जो कि एक इवेंट होता है ऑर्गेनाइज होता है इस तरीके से. उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और उसमें आपको खुद का सोल्यूशन सोचना होता है. सो जो ये कोडफ्रंट 2.0 हैकेथॉन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज ओपन इनोवेशन जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी अभी. ओके, सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देयर इज नो डोमेन. नॉर्मली हैकेथॉन्स में डोमेन होता है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यू कैन चूज प्रॉब्लम statements from some of the given list of problems, but here the problem statement theme is open innovation, which means that you can select your problem on your own. And then you will have a judge panel which will judge your projects which you will submit on the Hack to Skill platform. And then certificate of participation will be given to all the participants and the top 3 winners will receive the prizes. So this is the overview of what actually hackathon is and what we are doing in this Codefront 2.0. Okay, so next let me tell you about the problem statement. It is open innovation as I already said, build without boundaries. So जैसे मैंने बताया कि generally like we have 7 sustainable development goals SDG जो कि present हैं and they are very important goals जो कि मतलब कोई अगर प्रॉब्लम इन 17 गोल्स में से चूज करता है सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. और जैसे कि SIH आप लोगों ने करा होगा बहुत लोगों ने तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिस्टेड होती हैं प्लेटफॉर्म पे तो उनमें से जनरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करी जाती है. बट इसमें इस कैंपेन में जो थीम है वो ओपन है तो मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हो. इट कैन बी प्री डिफाइंड प्रॉब्लम ऑल्सो कि आप SIH में से कोई प्रॉब्लम आपने देखी हो आपको अच्छी लगी आपने वो उठा ली या फिर जो 7 सस्टेनेबल गोल्स है जो मैंने बताया आपने वो ले ली तो आप वैसा भी कर सकते हो. और एल्स यू कैन टेक एनी अदर प्रॉब्लम विच यू थिंक इज रियल प्रॉब्लम तो आप उसका भी कोई सोल्यूशन दे सकते हो. So this theme has no boundaries, so you can select any problem you want. Then we come to the 3 sessions which जो मैंने बताया इस campaign में होने वाले हैं with the hackathon. So hackathon आपका चलता रहेगा. In the upcoming slides, I will tell you about the timeline of the whole campaign. So hackathon will be ongoing and in between the hackathon timeline, we will have
3 different sessions. And the first session is this, which is the orientation, which is organized to make you familiarize with the things which are going to happen in till 20th January, which is the deadline of this campaign. The campaign will end. So the next 2 sessions will also take place like these only in before 20th January. So this is the first session, which will give you all the important checkpoints. Okay, and the second will take place on the 3rd of January, which will be on Google Technologies. क्योंकि आपको इस hackathon में at least एक Google Technology use करनी है. That's why we are keeping the second session on Google Technologies, जो कि आप अपने project में use कर पाओगे. So it will be helpful for you. And then similarly, the third will take place before 10th January, but that is not final. The date and the topic is not final, so it will be revealed soon. And then lastly, एक unofficial session भी होगा, जो कि इस 3 session से अलग होगा, लेकिन 20 जनवरी से पहले ही होगा, which will be on vibe coding, जो कि आपको मदद करेगा, लाइक अगर कोई बहुत ज्यादा बिगनर है या फिर ज्यादा कोडिंग नहीं जानता है अगर, तो उसकी भी मदद करेगा इन मेकिंग देयर प्रोजेक्ट, एंड वो हैकेथॉन एक्सपीरियंस कर पाएंगे. अगर उनको लाइक कोडिंग नहीं आती है, थोड़े बिगनर है, इस वजह से अगर उनको दिक्कत आएगी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने में या कुछ प्रोजेक्ट बनाने में, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस सेशन जो कि हम लेंगे वाइब कोडिंग पे, इसको सेशन को अटेंड करके आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा और आप स्टिल हैकेथॉन को एक्सपीरियंस कर पाओगे और इसमें पार्ट ले पाओगे. That's why that session will be very useful for especially for non-coders and beginners, and in general for everyone. So this was about the sessions, and now we come to the important point that you all should know, that is the timeline of the campaign. So as you all know, the campaign was launched on 26th December, and its registration and PPT submission has been opened on the platform, which is from 26th December to 31st December. So you can go and register there, and even if you have अभी तो किसी ने नहीं करा होगा PPT complete, but if जैसे जैसे आप complete करते जाओगे आप उसे submit कर सकते हो. मैं पूरा एक बार रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरा एक बार डेमो करके दिखाऊंगी. तो अगर अभी आई वुड प्रेफर कि आप लोग अभी जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा है जिसने, एटलीस्ट वो मेरे साथ रजिस्टर कर ले. मैं अभी लिंक शेयर करूंगी एंड पूरा डेमो करके दिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ ही अभी रजिस्टर कर सकते हो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज वन थिंग विच यू हैव टू डू, विच इज मैंडेटरी. मतलब सबको करना है. इवन इफ आप अपना पीपीटी कब सबमिट करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपका थोड़ा लेट बन रहा है, मेक श्योर टू डू इट बिफोर 31st. बट अगर आपका थोड़ा लेट बन रहा है, पीपीटी बाद में सबमिट कर दो, प्रोजेक्ट तो बाद में ही होगा, बट रजिस्टर आप अभी कर लो बिकॉज वो तो करना ही है. तो इसलिए आप मेरे साथ में कर लेना, लैपटॉप लेके बैठना, फोन से भी हो जाएगा, तो डेमो के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कर लेना. सो रजिस्ट्रेशन एंड पीपीटी विल बी टेकन बिफोर टिल 31st December, एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिशन ओपन हो जाएगा पोर्टल उसी प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर आप 1st जनवरी से सबमिट कर सकते हो, एंड दैट विल बी ओपन्ड till 10th January, as you can see here, from 1st to 10th. So in between that, you will have the second session on 3rd January, and the third session will be revealed soon. That will be before 10th January only. So on 10th January, project submission portal आपका बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आप project submit नहीं कर पाओगे. And then after 10th, evaluation by the jury will start, and that will take place from 11th January to 15th January. उसमें evaluation होगा, jury evaluate करेगी पूरा on the criteria of marks given to us by the GDG. अभी मैं आपको वो criteria दिखा दूंगी, उसी criteria पे evaluate होगा. And then initial top 10 announcement will be done on 13 January, जिसमें आपको सबको पता चल जाएगा कि लीडर बोर्ड में top 10 कौन है. And then the final top 3 winners will be announced on 17th January, जिनको prize मिलेगा for the hackathon, top 3 winners. And then prize distribution will also be revealed soon, कि हम उसे कब कर पाएंगे, बिकॉज हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कॉलेज में इफ पॉसिबल या फिर क्लास में, तो हम वो जल्दी रिवील कर देंगे. सो दैट वाज ऑल द टाइमलाइन ऑफ द टेक स्प्रिंट कैंपेन इंक्लूडिंग द हैकेथॉन एंड द सेशंस. यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी? Any doubt to anyone? ओके, इनकेस अगर कुछ पूछना हो, माइक ऑन करके भी अगर पूछना हो, सो यू कैन. मानसी, पार्टिसिपेंट्स के बाद माइक ऑप्शन है ना?
Yes है निमिषा. ठीक है, okay, fine. So if you want, you can use your mic also. Okay, what kind of project should I build for the hackathon? What kind of project? Okay, see, project, सबसे पहले you have to choose a problem statement and then you have to build a project. Mostly software related होता है, mostly, but it can be hardware also. बट इट शुड यूज अ गूगल टेक्नोलॉजी. ये मेन चीज है कि उसमें गूगल टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए. मोस्टली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स ही बनते हैं, तो इस तरीके का होगा. What type of PPT we create and submit? हाँ, about PPT guidelines, I have added that in my PPT, so I will brief you about the PPT guidelines. तो वो आगे मैं कवर करूंगी अभी. गूगल टेक्नोलॉजीज के बारे में आप कौन सी यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो, उसके बारे में सेकेंड सेशन विल बी कंडक्टेड. सो आपको डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा नितिन. और सॉफ्टवेयर रिलेटेड लाइक फॉर एग्जांपल यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट फॉर मेकिंग अ प्लेटफॉर्म. आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, इस टाइप की चीज. सबसे सिंपलेस्ट गूगल टेक्नोलॉजी तो जेमिनाई है जो आप यूज कर रहे हो. आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते रहते हो अब तो मेन एक सिंपलेस्ट टूल तो वही है जो यूज कर सकते हो. या यू कैन यूज दोज एपीआईज ऑल्सो. और हाँ, गूगल मैप का भी यूज कर सकते हो. अच्छा, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर चीज बना रहे हो अगर जिसमें गूगल मैप लोकेशन का एक्सेस अगर चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हो. हाउ कैन अ बिगिनर पार्टिसिपेट अनुष्का? उसी के लिए मैंने अभी पीछे बताया था कि जैसे जो वाइट कोडिंग वाला सेशन होगा उसमें हम कवर करेंगे ये चीज बहुत अच्छे से डिटेल में कि कैसे बिगिनर इस चीज का, बिगिनर हो या नॉन कोडर हो, थोड़ा जिसको कोडिंग थोड़ा कम आता हो इन केस, तो वो कैसे इस हैकेथॉन का, इस कैंपेन का पूरा फायदा उठा सकता है. तो वो चीज जल्दी हम कवर करेंगे वाइट कोडिंग वाले सेशन में. यस योगेश, यू हैव टू रजिस्टर इंडिविजुअली इवन इफ योर फॉर्म. टीम तो सबको बनानी है लेकिन उससे पहले सबको रजिस्टर करना पड़ेगा. वो मैं अभी एक बार बता दूंगी अभी जब डेमो करूंगी तो डेमो दिखाऊंगी. आयुष, अगर लैपटॉप नहीं है तो ट्राई यूजिंग समवन एल्स लैपटॉप. किसी और का लैपटॉप यूज करो या फिर इन वर्स्ट केस फोन यूज कर सकते हो, लेकिन किसी और का लैपटॉप ट्राई करो पहले. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इन केस अगर बीच में किसी का डाउट आता है तो पूछते रहना. मैम, व्हाट स्किल्स डू वी रियली नीड टू हैव इन दिस हैकाथॉन? सी, फॉर फर्स्ट ईयर्स स्पेशली स्पेशली स्किल्स तो कोई नहीं चाहिए, बट हाँ ये है कि देखो इस हैकाथॉन के दौरान ही तुम बहुत सारी स्किल्स सीखोगे. ये हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज ही इसीलिए होते हैं कि तुम सीख पाओ स्किल्स नए नए. सो बेसिकली तुमको गूगल टेक के बारे में, गूगल टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है, जैसे कि जेमिनाई हो गया और जैसे बशार ने बताया जेमिनाई फ्लटर, इन्हीं को तुमको यूज करना है तो इनको, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनकी बारे में कि कैसे यूज करते हैं. सो वो तुम अभी इसी हैकाथॉन वाले पीरियड में सीख सकते हो. अगर ये पहले से नहीं आता, पहले से आता तो बहुत ही बढ़िया है. But what kind of projects are good to build if I want to win a hackathon? Give me some examples.
गुड प्रोजेक्ट्स के बारे में हम श्योरली नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन पूरा नेक्स्ट सेशन में कवर होगा अच्छे से, जो भी 3 जनवरी को होगा नितिन, तो उसमें पूरा अच्छे से कवर होगा। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 17 सस्टेनेबल गोल्स में से अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओगे, यूज करोगे, सो दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू ऑल, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से अगर कोई भी एक टॉपिक उठा के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दैट विल रियली बी अ बेनिफिट फॉर यू ऑल। अगर उसमें से प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने का आइडिया है तो वो ट्राई करना। Okay, so moving forward, how and where to register, that will be the main question. अब आगे तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सीधे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो अपनी गिटहब और लिंक्डइन की, और लिंक्डइन स्पेलिंग इधर गलत है, प्लीज इग्नोर दैट, देयर विल बी एन ई। सो उसके बाद आपको जो का लिंक मिला होगा वो मैं अभी चैट पे भी डाल देती हूँ। So after getting the GitHub and LinkedIn URL, you have to click on this link, which will take you to the Hack to Skill platform, और उस पर फिर आपको रजिस्टर करना है, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एंड देन फर्स्ट स्टेप विल बी डन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, एंड देन यू कैन फॉर्म योर टीम, जो आप आराम से बना सकते हो। मैं आपको सो फर्स्टली जो साथ में कर रहे हैं वो भी, पहले तो आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल खोल लो। पहले तो आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल खोलो। उसमें जब आप खोलोगे तो उसमें हो सकता है कि आप पहले होम पेज पे जाओ गिटहब के, तो जो आइकन बना हुआ था लोगो, उस पे जाके प्रोफाइल पे क्लिक करके तो आप इसी पेज पे आओगे। तो इस पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस URL बार and then copy this link and save it somewhere. You can save it on your WhatsApp or somewhere else. So you have to save this link. I've already saved in my WhatsApp, so I don't need to do it again. So you have to save it, this link, somewhere. Similarly, visit the LinkedIn page and visit the profile page, and then copy this link, LinkedIn link, from here and save it somewhere. So these two things you will have to have with you beforehand. So when you have gathered these two things, yeah, there will be question and answers session after the session also, after the session. So आपने जब ये दो चीजें ले ली, गिटहब की और लिंक्डइन की, एंड देन नाउ क्लिक ऑन द हैक टू स्किल लिंक। आप जब हैक टू स्किल लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। So we basically need to propose a solution for a real world problem, discussing solving the ideas of it. ये भी मैं अभी कवर करूंगी आगे, अनमोल, जो पीपीटी कैसे बनानी है उसका थोड़ा सा रेफरेंस उसमें कवर करूंगी, तो उसमें बताऊंगी कि उस पीपीटी में क्या क्या चाहिए। मेनली हाँ यही होता है बेसिकली, कि आप एक प्रॉब्लम उठाते हो, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाते हो कोई, और उसका कोई सोल्यूशन प्रपोज करते हो कि ऐसे ऐसे करके आई हैव एन आइडिया एंड आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग माई दिस आइडिया, और आप उसको डेमो बना के थोड़ा सा रन करके दिखाते हो। तो मैं आगे कवर करूंगी अभी। स्किल्स एज सच कोई प्री रिक्विजिट स्किल्स नहीं चाहिए, ये हैकाथन है ही इसलिए कि आप सीख पाओ, तो प्री रिक्विजिट स्किल्स ज्यादा नहीं चाहिए कोई। वैल्यूएशन क्राइटेरिया मैं आगे बताऊंगी अभी। सो आप जब हैक टू स्किल प्लेटफॉर्म का लिंक खोलोगे तो इस पेज पे आ जाएगा, एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट, यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको ये सारे दिख रहे होंगे राउंड्स की क्या क्या है, उसकी डेडलाइन भी दिख रही होगी। रजिस्ट्रेशन इज ओपन फ्रॉम 26 to 31, एंड देन यू हैव टू फॉर्म द टीम ऑल्सो इन द सेम
time period, and then you have PPT submission, then you have project submission, and then initial, as I told you in the timeline. ओके, सो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन हैक टू स्किल प्लेटफॉर्म का लॉगिन पूछेगा, तो आप उसमें नॉर्मल आप ईमेल से भी कोई नया अकाउंट बना सकते हो अगर आपका नहीं बना हुआ है, और एल्स यू कैन लॉग इन फ्रॉम द गूगल ऑल्सो, गूगल अकाउंट। सो आई विल डू इट विथ माई गूगल अकाउंट एंड लेट मी यूज दिस ईमेल ओनली। सो मैं इस ईमेल से लॉग इन कर रही हूँ हैक टू स्किल प्लेटफॉर्म में। तो ये इस तरीके से खुल गया। अब हैक टू स्किल वाले प्लेटफॉर्म में मेरी इस ईमेल से लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, अब इस लिंक को एक बार या तो रीलोड करके देखती हूँ, नहीं, इस लिंक को क्लोज करके इस लिंक को दोबारा खोलना है। जस्ट अ मिनट गाइस। So I'll open this link again, nothing else. अब जब मैंने लिंक दोबारा ओपन करी है, so as you can see when I clicked on the register now button again, from here I click the register now button again, and now this will take me to the registration details page. So here you have to fill the details, your name, and then you can type any name, either you can type your original name or any username you want to give, and you have to type your WhatsApp number here. Okay, why is it not typing? Yes. So you have to type your phone number here, and then your date of birth. Let me give it anything, and then gender. You can leave the alternate number option. Yes, Prashasti, you have raised your hand. Is it by mistake? Okay, so alternate number आप लोग छोड़ सकते हो. It's not required. As you can see, there is no asterisk mark here. So you can leave that and then fill the country. And then your state. And then city. Here you have to type your home city. Because college city. Yes. When you click on the college student option, you will get here the option of filling your college city. So here you have to type your city of your home. And then when you click on college student, these options will reveal to you. And then you type here, when you type JK, and then you give a space bar, and then you type I, then you will see the option of our college, that is JK Institute. So you have to type a JK space bar and I. Then you will see the option of our college. And then college country, and then college state, and then college city, which most of you will type as Prayagraj, of course. And then your degree, you type
bachelor, and then you will get an option of Bachelor of Technology, and then stream. And then your pass out year. So here, as you can see, I already made you copy the LinkedIn and GitHub profile for your easiness. So you already have it now. So you have to take that out and just paste here. Okay, you have to fill the original name. Okay. And okay, so you have to paste your GitHub profile here. I'm taking it directly from here. Your file, and then your LinkedIn profile. So after you have done this much, you have to accept the terms and conditions and then click on register now. So as you can see that once you have registered, you have clicked on the button register now. After that, you will not be able to edit your details. So you have to recheck it. Make sure to recheck all the details, especially the links of your GitHub and LinkedIn profile. Make sure to recheck them and then you can proceed afterwards. So once you have done this, your first step is over. As you can see, there's a tick here, green tick. So you are registered. It is written here. So the first step has been done. And now your second step will be team formation, which you can do till 31st December, including the PPT submission also. Both of them have to be done before 31st December. So the next step, that is for team formation, what you have to do is you can go from here also. You click on the drop down arrow, and you get the team management option from here also, or you can directly click on the team management tab here and you get this page. From here, as you can see, there are two options. Either you can create a team, be the leader, or you can look for a team, the name of the team which you already have, and you can send a request for joining that team. So let me show you quickly how to create a team. When you click on here, you will get this. These are some important points you have to remember, that you cannot join another team and only participants who are not already part of another team can join your team. मीन्स आप अगर किसी टीम में ऑलरेडी ज्वाइन हो तो आप किसी दूसरी की टीम में ज्वाइन नहीं कर सकते हो until unless you are in some team. आप किसी टीम से रिमूव हो चुके हो तभी आप किसी दूसरे की टीम में ज्वाइन हो सकते हो, और जिस टीम में आप थे वो टीम डिलीट हो चुकी है, तब आप किसी दूसरे की टीम में ज्वाइन कर पाओगे. लेकिन जब तक आप किसी टीम में रजिस्टर्ड, किसी टीम में ज्वाइंड हो, तब तक आप किसी दूसरे की टीम में ज्वाइन नहीं कर सकते. यही सब लिखा है इसमें. सो यू क्लिक ऑन आई अंडरस्टैंड एंड देन दीज आर 3 ऑप्शंस हियर. सिर्फ यही 3 चीजें चाहिए यहाँ पे. एक टीम नेम चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी. आपको एक टीम नेम चाहिए. उसके बाद टीम डिस्क्रिप्शन एंड लोगो आर ऑप्शनल. आप डालो ना डालो, इट्स फाइन. तो यहाँ पे डाल सकते हो एंड देन यू कैन क्रिएट. लेट्स से मैंने डाल दिया टीम कोडर्स एंड देन आई क्रिएट. तो क्रिएट करने के बाद एज यू कैन सी मैंने क्रिएट करा है, इसलिए मेरी आईडी एज अ लीडर यहाँ पे लिख के आ रहा है. टीम मेंबर के अंदर ब्रैकेट में लीडर लिखा है बिकॉज मैंने टीम क्रिएट करी है. अब इसके बाद आपको अपनी टीम में मेंबर्स ऐड करने हैं. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनवाइट मेंबर के नीचे देखो कॉपी लिंक लिखा है, तो आप यहाँ कॉपी लिंक करके आपको लिंक शो हो जाएगा. आप यहाँ से कॉपी करके किसी को भी लिंक भेज सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल, कहीं पे मतलब भेज सकते हो. उसके पास वो पहुंच जाएगा इनवाइट लिंक, और जब वो इनवाइट लिंक पे क्लिक करेगा, कोई भी जना अगर किसी को इनवाइट लिंक आया है, वो जब क्लिक करेगा उस पर, और अगर उसने रजिस्टर नहीं किया है तो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन का पेज ही दिखेगा. उसको पहले रजिस्टर करना ही पड़ेगा इवन दो ही हैज क्लिक ऑन दिस लिंक, ऑन दिस जॉइन द टीम लिंक. लेकिन उसको अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले उसको रजिस्टर करने का ऑप्शन ही दिखाएगा. वो रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन उसमें दिखा देगा वो कि आपको एक रिक्वेस्ट आई है ज्वाइन करने की, तो फिर वो ज्वाइन हो जाएगा. लेकिन अगर पहले से रजिस्टर कर रखा है तो डायरेक्टली ज्वाइन होने का रिक्वेस्ट दिखा देगा और वो हो जाएगा. और वो सब चीजें यहाँ पे दिखाएगा इस एरिया में, इस टेबल में, कि रिक्वेस्ट आई है नहीं आई है, रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, वो सब यहाँ दिखा देगा. तो यही मेन चीजें थी. यहाँ तक किसी को डाउट?
अगर किसी का डाउट मिस हो गया हो तो उसको दोबारा रीसेंड कर देना. आई विल श्योरली पिक इट अप अगर मिस हो गया हो तो. और जो लोग साथ में कर रहे हैं, इफ दे आर एनकाउंटरिंग एनी प्रॉब्लम, लेट अस नो. या आर यू रजिस्टरिंग अलोंगसाइड? कितने लोग साथ में कर रहे हैं रजिस्टर? ओके, ग्रेट. ओके. और जो लोग अभी साथ में रजिस्टर कर रहे हैं और जो लोग कर भी चुके हैं, मेक श्योर टू हेल्प योर फ्रेंड्स रजिस्टर करने में, उनकी हेल्प करना. जो अभी सेशन में नहीं भी ज्वाइन कर पाए हैं, तो उन लोगों को हेल्प करना कि वो सही से रजिस्टर कर पाए. Shefali, you're talking about the whole campaign, the hackathon. Yes, it is online. It will be done online. Because of the winter vacation, it has to be online. Yes. ओके, सो आई एम गेसिंग अभी यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, जो अलॉन्ग साइड भी रजिस्टर कर रहे हैं, किसी को डाउट नहीं? Okay, so this was about how to register and where to register, जो कि 31 दिसंबर तक करना है. सो आई हाईली प्रेफर कि सब लोग जल्दी से कर लें. विद इन 1-2 days सब लोग कंप्लीट कर लें अपना रजिस्ट्रेशन एंड प्लस पीपीटी सबमिशन भी. देन दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करते वक्त ही बता दिया. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स की डिटेल्स एडिटिंग अलाउड नहीं है डिटेल्स की. एंड देन आप टीम ज्वाइन नहीं कर सकते किसी दूसरे की अनटिल अनलेस आप उस किसी टीम में हो. एंड हाँ, लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन गूगल टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट. कोई भी एक सिंपलेस्ट भी आप यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है. सिंपलेस्ट एंड कोई भी सिंपलेस्ट जो आपको पता हो, फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई, बट एक यूज करनी बहुत जरूरी है. थैंक यू अभिमन्यु. सो these were the important points. उसके बाद टीम फॉर्मेशन की कॉन्स्ट्रेंट्स तो थोड़े से हैं, बस यही कि 1 से 3 टीम साइज हो सकती है, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3. और कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. एंड इंटर कॉलेज टीम फॉर्मेशन इज अलाउड, जो कि बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए. सो इफ यू नो कि तुम्हारा कोई दूसरे कॉलेज में कोई फ्रेंड है, तुम्हें लगता है यू आर कंफर्टेबल विद हिम और हर, तुम कर सकते हो, उससे टीम बनाना चाहते हो, सो यू कैन. तुम लोग टीम आराम से बना सकते हो कंफर्टेबली. एंड देन दिस इज द मार्क्स क्राइटेरिया, जो कि पूछ भी रहे थे कुछ लोग डाउट में. सो दिस इज द मार्क्स क्राइटेरिया, जिसमें जो हमारा जूरी पैनल होगा, वो हर एक जज जो होगा वो इन मार्क्स क्राइटेरिया पे अपने अपने खुद के मार्क्स देगा. एंड देन सबके मार्क्स ऐड होंगे एंड देन इट विल डिटरमाइन द टॉप 3 विनर्स. और क्राइटेरिया ये है कि
कितना अच्छा आपका आइडिया है, कितना इनोवेटिव है, कितना अच्छा है, उसके 15 पॉइंट्स हैं. एंड देन टेक्निकल फीजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो 15 पॉइंट्स, विच मीन्स कि आपका जो आइडिया है आप प्रेजेंट कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो अपने पीपीटी में, अपने सोल्यूशन में, वो कितना अप्लाई हो सकता है रियल वर्ल्ड में, कितना फीजिबल का मतलब है कितना अप्लाई हो सकता है, उसके 15 पॉइंट्स होते हैं. पता चला ऐसा हुआ कि आपका आइडिया है, आपने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन में ही पूरा हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा सोच लिया या फिर मतलब बहुत ही बेकार सोच लिया, या तो ऐसा हो सकता है कि उतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे तो ना अप्लाई हो पाए इन रियल वर्ल्ड. दैट इज इम्पोर्टेंट कि क्योंकि आप एक दुनिया के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो अप्लाई तो होना चाहिए एटलीस्ट, तभी तो यूज हो पाएगा. तो इसका मतलब ये है कि वो टेक्निकली फीजिबल होना चाहिए. या yeah, rocket to Mars. So, and then you have 10 points for your potential for impact of solution, कि मतलब उस सॉल्यूशन जब अप्लाई हो जाएगा, feasible है, अप्लाई होने के बाद उसका कितना पोटेंशियल है मार्केट में, कितना ज्यादा वो अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा है, कितना इंटेंसिटी तक. दैट इज पोटेंशियल फॉर इम्पैक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ योर सॉल्यूशन विच यू आर proposing. So that is for 10 points. And then lastly, use of Google technology has also 10 points. That's why it is mandatory to use at least one Google technology, which will gain you straight 10 marks. Or you can say straight 10 points, score, whatever. So this totals up to 50 points. So every judge will give you marks out of 50. And then those marks will be summed up, and then the total will give the top 3 winners. Top 3 and before that the top 10 winners also. इसमें कोई डाउट किसी को? आई होप सो, इसमें तो डाउट नहीं होगा. Okay, we have the PPT guidelines here, which is actually important. So I will just move quickly to there. PPT में टूल यूज करना है या खुद से बनानी है? एक गूगल टूल को यूज करना है और पीपीटी में उसको बताना होगा कि आपने कौन सा गूगल टूल यूज किया है. खुद से बनानी सिर्फ पीपीटी है, खुद से कोई टूल नहीं बनाना है, अगर ये पूछना चाह रहे हो तो. खुद से सिर्फ पीपीटी बनानी है और पीपीटी में ये बताना होगा कि आपने कौन सा गूगल टूल यूज किया है, कौन सी गूगल टेक्नोलॉजी या गूगल टूल यूज किया है, उसको कैसे यूज किया और क्या यूज किया, ये पीपीटी में बताना होगा बस. यस. सो देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव व्हाई यू शुड डू दिस. जो सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम क्यों ही करेंगे, हमारे एग्जाम्स हैं, हम और चीजें भी कर रहे हैं, पर हम ये क्यों करें. बट लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज मैं थर्ड ईयर में हूँ, हम कोर टीम में जितने मेंबर्स हैं हम लोग थर्ड ईयर में, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, एंड वी नो दैट जो हमने गलती अपने फर्स्ट ईयर में करी है, इवन अपने सेकेंड ईयर में करी है, वो हम नहीं चाहते कि तुम लोग भी रिपीट करो. एंड वी वांट द बेस्ट फॉर यू ऑल, कि तुम लोग जल्दी से अपना लाइन सेलेक्ट करके जल्दी से इन सब चीजों में आगे बढ़ पाओ, स्पेशली फॉर दोज हु आर एमिंग फॉर एमएनसीज, हु आर एमिंग फॉर जॉब्स ओनली स्ट्रेट फ्रॉम दिस कॉलेज. एक तो हो गया मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम्स आगे हायर देना चाहता है, यूपीएससी, गेट एंड ऑल एग्जाम्स, उसको देना चाहता है, तो वो तो उसकी तो अलग लाइन है. बट जो टेक में जाना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शुरुआत से ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे, बिकॉज बिलीव मी, आपके आसपास जब ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, टेक पायनियर्स वाला एनवायरनमेंट रहेगा, तभी आप सीख पाओगे. बहुत सारी चीजें मेरी ऐसी हैं जो मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर के एंड तक, एंड इवन अभी हम जब सेशंस में जाते हैं एज अ कोर टीम, हम लोग जाते हैं अगर अटेंड करने सेशंस, तो कुछ चीजें अभी अभी भी पता चलती हैं. तो ये चीजें तुम लोगों को फर्स्ट ईयर से ही पता चलेंगे तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहेगा. सो बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए कि तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जिससे तुम्हें सीखने को मिलता रहे, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो. दैट्स वाई दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. प्लस ये इन हाउस है,
इन हाउस मतलब इन कॉलेज है. सो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी राइट इन योर कॉलेज. हम लोग दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं मिलती है, हमारे कॉलेज वाले तो कुछ नहीं कराते हैं, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर यू कि इसमें तुमको सेशंस हैं, तुम अटेंड भी, तुम सीख भी रहे हो और तुम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो तुम्हारे लिए रेज्यूमे में ऐड करने के लिए, रेज्यूमे में एंड प्लस लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए, गिटहब में डालने के लिए प्रोजेक्ट नहीं होता है स्टार्टिंग में. सो दिस विल गिव यू द प्रोजेक्ट, तुम जिसको ऐड कर सको. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड देन आपको हैकाथॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा विद प्रॉपर गाइडेंस. अभी हम सेशंस भी लेते जा रहे हैं और आपका हैकाथॉन भी कराते जा रहे हैं. सो इसलिए आपको उतना गाइडेंस भी मिलता जा रहा है और एक्सपीरियंस भी मिलता जा रहा है. इसलिए प्लस लास्टली आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इसमें इंप्रूव होंगी. आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट सबमिशन में आपको वीडियो सबमिट करनी होगी मैक्सिमम 3 मिनट्स की. तो आपको अपना कैसे प्रेजेंट करना है आइडिया बोल के और थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके, वो चीज़ आपकी इंप्रूव होगी इसमें, जो कि एक्चुअली जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत ज़रूरत होती है इस चीज़ की. दैट्स वाई दिस इज एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. फिर लास्टली आई थिंक वी आर कमिंग टू एन एंड. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछ भी रहे थे ऊपर डाउट में लोग कि पीपीटी कैसे बनानी है, उसमें क्या होगा, कैसे करनी है. सो मैक्सिमम 7 स्लाइड्स हम होनी चाहिए. वैसे कोई गुड पीपीटी होती है तो उसमें ज़्यादा स्लाइड्स नहीं रखनी चाहिए, इसलिए 7 स्लाइड्स होंगी तो इट्स एवरेज. बट कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस या कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हमें नहीं मिला है ऊपर से जीडीजी से कि आपको इतना ही रखना है, इसलिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट कुछ रिकमेंडेशंस है जो मैं बताना चाहूँगी कि एक अच्छी पीपीटी के लिए कैसा होना चाहिए. सो अच्छी पीपीटी के लिए आप ऑन एन एवरेज आप 7 स्लाइड्स रखो इंक्लूडिंग द नेम पेज, द फर्स्ट पेज, तो इट विल बी अ गुड पीपीटी. एंड देन .pdf फॉर्मेट में उसको सबमिट करनी है. एंड देन आपकी 7 स्लाइड्स में क्या क्या हो सकता है मैं एक ओवरव्यू दे सकती हूँ और आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो. जैसे फर्स्ट स्लाइड में आपका टीम नेम, मेंबर्स का नाम हो गया और प्रॉब्लम थीम हो गया. एंड देन सेकेंड स्लाइड में आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हो कि आप किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने चूज किया है और वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हो कि वो प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली आप किस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो और क्यों टैकल कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी क्या है कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम है क्यों इतनी बड़ी. एंड देन थर्ड स्लाइड में आप उसका सोल्यूशन डिस्क्राइब कर सकते हो. फिर कि आप अपना क्या सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, द सोल्यूशन विच यू आर प्रपोजिंग यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट टू मेक द प्रॉब्लम बेटर. तो आप वो थर्ड स्लाइड में एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड देन फोर्थ स्लाइड में आप गूगल या नॉन गूगल, गूगल का तो टेक होगा ही, प्लस उसके साथ और भी अगर टेक्नोलॉजीज आपने यूज करी है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो टेक स्टैक कि आपने क्या क्या यूज किया है और किस तरीके से यूज किया है. एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फीजिबिलिटी एंड यूएसपी बताना. फीजिबिलिटी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, दैट इज कि आपका सॉल्यूशन जो है कितना इम्प्लीमेंटेबल है, उसको बताना कि रियल वर्ल्ड में कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है वो चीज. एंड यूएसपी इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, विच इज कि आपका सॉल्यूशन कितना ज्यादा यूनिक है, इसकी यूनिक फीचर्स क्या है. क्योंकि हो सकता है आपका जो सोल्यूशन है वो पहले लोग भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन आपके आइडिया में यूनिक क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, वो चीज आपको बतानी है. आपके सोल्यूशन में यूनिक है, क्यों आपका सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसमें अलग क्या है, वो चीज बतानी है. तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो आप एक स्लाइड में ये बता सकते हो. एंड देन 6th स्लाइड में आप ये बता सकते हो MVP, दैट इज योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कि होता है आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, जो भी एप्लीकेशन बनाओगे, उसका एक छोटा सा डेमो काइंड ऑफ कि आपने उसको जो भी बनाया है उसका इंटरफेस का, या तो उसका लिंक या फिर उसकी इंटरफेस के स्क्रीनशॉट्स, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके स्क्रीनशॉट्स, वो आप अपनी स्लाइड में लगा सकते हो टू शो दैट आपने वो बनाया है एंड वो वर्क कर रहा है, वो शो करने के लिए उसके स्क्रीनशॉट्स. तो वो होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. वैसे तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में एक्चुअली वो आता है डेमो लिंक आता है कि आपने एक बनाया है थोड़ा सा वो चीज और वो रन कर रहा है, बस ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है पर वो रन कर रहा है. तो आप अपनी पीपीटी में उसके स्क्रीनशॉट लगा सकते हो टू शो दैट इट इज वर्किंग. तो ये चीजें मिनिमम होनी चाहिए एक अच्छी पीपीटी में, जो आप ले सकते हो, इससे रेफरेंस ले सकते हो. दिस इज जस्ट अ रेफरेंस. आप इसमें कोई भी जरूरी नहीं एक ही स्लाइड में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी, एक ही स्लाइड में सोल्यूशन. यू कैन इंक्रीज द स्लाइड्स एज यू वांट, जैसे आपको लेनी है. So this is just a reference which we are giving you
जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो भी इससे रेफरेंस दे सकते हैं, और जिनको पता है वो भी. दिस इज जस्ट अ रेफरेंस. ओके. And then recommendations for a good PPT. There are some things which you can keep in mind that PPT हमेशा याद रखना, बहुत ही सिंपल और क्लियर रखना, जो मेन प्रॉब्लम है उस पर स्टिक रहना. ज्यादा इधर उधर प्रॉब्लम से डिविएट हो गए अगर, तो फिर इट मेक्स द पीपीटी वेरी अनक्लियर. इस चीज का ध्यान रखना, पीपीटी सिंपल हो, क्लियर हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप ये पीपीटी देख रहे हो सब लोग, मैं जो दिखा रही हूँ, इसमें अलग अलग स्लाइड में अलग अलग आपको पता चल रही है चीजें कि हाँ इस स्लाइड में ये है, इस स्लाइड में ये है, इस स्लाइड में ये है. मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, सो क्लियर होगी ये पीपीटी, कि समझ में आ रहा है कि एक के बाद एक क्या चीजें हैं. इसी तरीके से आप जो अपनी पीपीटी बनाओ उसमें क्लियर रखना चीजों को कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सारी स्लाइड्स को अपनी पीपीटी में डिजाइन के चक्कर में चीजों से एलिमेंट से भरना मत. जैसे कैनवा में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं यूज करने के लिए, लेकिन स्लाइड्स में पीपीटी में एलिमेंट्स ज्यादा भरना मत, ज्यादा फिल्ड अप ना लगे स्लाइड्स. वो चीज अच्छी नहीं लगती है पीपीटी में, गुड पीपीटी में. अगर आपको अच्छी पीपीटी बनानी है तो ऑफ कोर्स अच्छी बनाने के लिए सो ज्यादा फिलअप मत करना. जैसे ये पीपीटी सिंपल है बट कंटेंट है इसमें, तो इसीलिए ज्यादा एलिमेंट्स यूज मत करना. आप थोड़े बहुत यूज करो, समझ में आता है. जैसे मैंने यहाँ पे एरो लगा रखा है, प्लस आई हैव टेकन अ बैकग्राउंड ऑफ अ क्रम्पल्ड पेपर. सो ऐसा हो, समझ में आता है, बट ज्यादा एलिमेंट्स फिलअप मत करना. एंड देन आइडेंटिफिकेशंस कांस्टेंट रखना थ्रू आउट द पेजेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने जो हेडिंग्स ली है, ये सारी हेडिंग्स अगर नोटिस करी हो तो एक ही मार्जिन पे है, ऊपर से नीचे से एक ही डिस्टेंस पे है, सारी हेडिंग्स सारी पेजेस में. तो इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना, जितना हो सके उतना. होता है कभी कभार आपको चीजें फिक्स करनी हो, नहीं हो पाती है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, दैट्स फाइन. बट कीप इन माइंड दैट आप जितना कर सको आइडेंटिफिकेशंस थ्रू आउट द पेजेस सेम रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड देन यू हैव यूज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस मोर देन टेक्स्ट. टेक्स्ट बहुत कम होना चाहिए, ये मैंने थ्रू आउट अपने 3 सालों में सीखा है पीपीटी बनाने के लिए. टेक्स्ट बहुत कम होना चाहिए एंड यूज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस एज मच एज पॉसिबल. जैसे ग्राफ्स हो गए, आपको अगर 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, 5 पॉइंट्स बताने हैं, तो आप उसको 5 लिस्ट में लिख दो या फिर ग्राफ बना के 5 पॉइंट्स दिखा दो उस तरीके से. एंड यूज मिनिमल टेक्स्ट एंड देन स्टिक टू द मेन प्रॉब्लम. एंड लास्टली एड्रेस एट मोस्ट 2 प्रॉब्लम्स. ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज जब आप किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाते हो तो आप जब सोचते हो उसके बारे में, तो एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स दिमाग में आती है कि हाँ मैं इस अपने सॉल्यूशन से इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर सकता हूँ. कभी कभार एक ही प्रॉब्लम की 2 सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो आ जाती हैं दिमाग में, लेकिन इट्स बेटर टू स्टिक टू वन प्रॉब्लम, क्लियर एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प. एक ही प्रॉब्लम लो और उसी को सॉल्व करो. सो दीज वर सम रिकमेंडेशंस फॉर अ गुड पीपीटी जो आप बनाओगे भी तो आपके काम आएंगे बहुत. यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. Yes, you can submit it without the screenshots also. अगर किसी का बन जाए तो इट्स वेल एंड गुड, ना भी बने तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. अगर बन जाए तो लगा सकता है स्क्रीनशॉट्स. Yes, inter-college team formation is allowed. Students from other college can also participate. Okay, so we are coming to the end. लास्ट चीज बची है बस एक, दैट इज प्रोजेक्ट गाइडलाइंस. जब पीपीटी सबमिट हो जाएगा till 31st December, after that you have project submission from 1st to 10th January. So for project submission, what you have to do is there are some things which you will need to upload on this platform. Firstly, आपको एक वीडियो शूट करना होगा अपना, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे अपने सॉल्यूशन के बारे में
कि आपने किस प्रॉब्लम को टैकल किया है और उसका सॉल्यूशन आप क्या प्रपोज कर रहे हो, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, और थोड़ा सा डेमो भी दिखाना है उसमें कि आपने जो बनाया है आपको रन करके दिखाना है थोड़ा सा कि क्या है, मतलब इवन डिटेल में नहीं बनाया हो, हर फीचर काम ना कर रहा हो तो इट डजेंट मैटर, बट इंटरफेस बनाया हो, प्लेटफॉर्म बनाया हो, समथिंग यू हैव टू रन इट थ्रू एंड शो इट दैट इट इज वर्किंग। तो वो बना के, वीडियो बना के उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके, एंड देन यू हैव टू पुट दैट यूट्यूब, द लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल ऑन द प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जब प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट टाइम खुल जाएगा, टाइम ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा लिंक डालने का। तो वो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डालना होगा, जो वीडियो आप अपलोड करोगे उस वीडियो का लिंक आपको वहाँ पे डालना होगा। एंड देन वीडियो कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3 मिनट्स, 3 मिनट्स का हो सकता है। उसमें आपको एक्सप्लेन करना है, एंड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उतना चलता है, इट्स फाइन, बट कीप इट ऑन एन एवरेज ऑफ 3 मिनट्स। एंड देन गिटहब यूआरएल विल बी नीडेड। जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए जो कोड यूज हुआ है वो कोड पूरा गिटहब रिपोजिटरी आपको बना के उसमें डालनी पड़ेगी, जिसको इफ एनीबडी हैज प्रॉब्लम इन दैट वो रिकॉर्डेड सेशन से रेफरेंस ले सकता है। जो हमारा गिटहब का सेशन हुआ था एट फर्स्ट, ओपन सोर्स गिटहब का, उसका रिकॉर्डेड सेशन देख के उससे रेफरेंस ले सकता है कि वो कैसे करना है। एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सोल्यूशन विल बी नीडेड। जब आप वहाँ पे सबमिट करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, आपको सोल्यूशन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना होगा। एंड लास्टली, गूगल टेक और गूगल एआई टूल्स आपने जो भी यूज करा है गूगल का, वो आपको वहाँ पे लिस्ट करना होगा जो आपने यूज करी है, जस्ट लिस्ट करना होगा आपने क्या क्या यूज किया है। तो यही मेन चीजें थी। आपको जब प्रोजेक्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा तो उसमें ये चीजें डालनी होंगी। किसी को डाउट इन चीजों में? नहीं योगेश, सबमिट एज एन अलग से इंडिविजुअली आपको एमवीपी भी सबमिट नहीं करना है और ना ही फुल्ली फ्लेजेड ऐप सबमिट करना है। दोनों में से कुछ नहीं सबमिट करना है। एमवीपी जस्ट पीपीटी में आप ऐड कर सकते हो अगर बन गया है आपका, तो मैं वो बता रही थी कि पीपीटी में ऐड कर सकते हो जस्ट उसके स्क्रीनशॉट अगर बन गया है तो। लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट सबमिशन का वीडियो बनेगा, उस वीडियो में आपको थोड़ा सा रन करके दिखाना होगा आपका डेमो, थोड़ा सा जो भी आपने बनाया है उस प्रोजेक्ट सबमिशन वाले वीडियो में। जस्ट फुल फ्लेजेड ऐप इज नॉट रिक्वायर्ड। रिकॉर्डेड सेशन का लिंक ऑलरेडी ग्रुप पे जा चुका है, अनाउंसमेंट्स वाले ग्रुप पे जा चुका है। हम उसको एक बार दोबारा रीसेंड कर देंगे या तो। नहीं मानस, एक टीम से एक ही वीडियो सबमिट होगी बस, बिकॉज एज ए टीम यू आर सबमिटिंग वन solution of a problem, that's why one video per team. Anyone can make the video, not only the team member but anyone can make the video. Even you can make it together also in one video. I think it is not required to do it public.
Does anyone have any other doubts? Yeah, you people can also ask in the group. Yeah, if there are no more doubts, we can wrap up the session. Thank you so much, Namisha, for this wonderful session. Your guidance will definitely help all the participants prepare with more clarity and confidence. And thank you to everyone who joined us today. We hope this session helps you kickstart your hackathon journey. And we look forward to seeing your innovative ideas come to life in Codefront 2.0. Thank you very much, everyone. I guess we will wait for 5 more minutes. If there is any doubts left, you can still continue in the chat. And if you're not in the group, you can just go to the announcements. There you will find the group link. Thank you, Sachin. Thank you, Abhimanyu. And thank you, guys. And Utkarsh, you are saying that you have a project. So if you want to tell it, if you want to discuss it, please do it on the LinkedIn profile. Okay. You can ping me up on the LinkedIn and you can discuss it there. Am I audible, guys? Yes, you are. Nimisha, I'm just confirming. Did you hear my thank you part? Yes, yes, you all heard it. Okay. Yes. Okay. Okay. Bye bye, guys. Thank you so much.